अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं होगा, हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान को दिया इंतबाह। CBESE में बेज़ाब्तगियाँ, धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का सबूत, कांग्रेस ने फौरी निकाल बाहर करने का किया मुतालबा। काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जवानों का जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज, मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर जबरदस्त कशीदगी, खान सर की किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन, तलाशी मुहिम तेज। एशियन गेम्स के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान, शरीयस एयर T20 के नए कप्तान मुकर्रर, सूर्य कुमार यादव जगह नहीं बना पाए, तिलक वर्मा बने वाइस कैप्टन। और प्रज्ञानंद की शतरंज के आलमी मुकाबलों में तारीख साज कामयाबी, नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता, वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। तो ये थी सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। हिंदुस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के मुकम्मल और काबिल एतमाद खात्मे तक सिंध तास मुआहदे मुअत्तल रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुआहदे की बहाली का इन्हिसार पाकिस्तान के रवैये में मुस्तकिल और काबिल एतमाद तब्दीली पर मुनहसर है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये मौक़िफ़ दोहराया है। उनका बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान ने चनाब बयास लिंक सुरंग मनसूबे और सलाल डैम के ज़ख़ीरे से गाद निकालने के हिंदुस्तानी मंसूबों पर एतराज़ात उठाए थे। पाकिस्तान का कहना था कि हिंदुस्तान पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उधर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जम्मू कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। To the 5 newly elected members of the UN Security Council for the 2027-28 term, Austria, Kyrgyzstan, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe. We look forward to working with each of you and wish you all success. Mr. President, today's meeting gains particular salience as consideration of the Security Council annual report by the General Assembly is explicitly provided for in the UN Charter. As a principal organ of the UN, the Security Council has been primarily tasked with the onerous responsibility of maintenance of international peace and security. Therefore, India reiterates that today's discussion is not to be treated as a purely procedural matter. Against this backdrop, I'd like to make the following points. First, submission and consideration of the Security Council annual report to the General Assembly offers a wonderful platform for the wider UN membership to reflect upon and share their views regarding the functioning of the Council in the past year. Annual reports of the Security Council, therefore, needs to be analytical in nature. It should not be a compilation of facts. Areas of improvement and gaps, if any, with regard to discharging Council's core mandate of maintenance of international peace and security must feature prominently in the report. Second, the annual report follows a standard template. Inclusion of several significant elements could enrich the value of the report and help serve its purpose better. Please allow me to offer a specific example. Peacekeeping is an important tool available at the disposal of the Security Council to fulfill its critical responsibilities. However, the standard template of the report largely excludes finer points pertaining to operational modalities, associated challenges, the review of respective mandates, etc., with regard to peacekeeping. Third, the annual report discussion in the General Assembly is usually held towards the end of the first half of the subsequent year. The world witnesses considerable changes during the 6-month period. 2026 has been no different in this regard. Therefore, India urges that this aspect be accorded due importance, and the report may be submitted for consideration of the General Assembly in the early part of the year itself. Mr. President, the unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. Pakistan has decided not to spare this forum either from their characteristic misuse
of august UN platforms for their divisive political interests. Abuse of its presence on the Security Council by Pakistan, including through the circulation of several misinformed and misleading communications, also testifies to this counterproductive approach. I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. कांग्रेस ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाते हुए कहा है कि CBSE के इम्तहान ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम और दोबारा तशख़ीस के अमल में हुई है बेज़ाब्तगियों से साबित हो गया है कि मिस्टर प्रधान अहल नहीं है और उनकी नाअहली अब सबके सामने बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस के शोबे मवासलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि वज़ारत तालीम से जुड़े मामलात की परतें लगातार खुल रही हैं। CBSE के रिव्यूलेशन पोर्टल के मुंतखब कंपनी COMP ने साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जिन सर्टिफिकेट्स को टेंडर के अमल में पिटीशन किया था उनमें संगीन खामियां पाई गई हैं। उनका कहना था कि एक सर्टिफिकेट किसी दूसरे के कस्टमर से मुताल्लिक़ था और उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, जबकि दूसरा सिर्फ आर्जी एप्लीकेशन के ऑडिट पर मबनी था। लोग कहते हैं कि तहरीक, धरना और मुजाहरा और जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे ये साबित होता है कि हम जिंदा हैं और हुकूमत के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जिंदा हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ने के काबिल हैं। ये तबसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच इज़ बैक हैंडल से पोस्ट किया गया है। यह बयान उस इस्तेजाजी मुजाहरा की नुमाइंदगी कर रहा है जो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों नौजवान कर रहे हैं, जिसमें मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा का मुतालबा रखा गया है। उधर बिहार के राजधानी पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मुबैना हमले का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। दरियासना पटना के SSP कार्तिकिया शर्मा ने बताया कि वीडियो में फायरिंग करते नजर आने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके हथियार जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए गैर मुल्की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जा रहा है। इस SP ने कहा कि मज़ीद तफ्तीश से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक FIR के बाद खान को गिरफ्तारी का ख़तरा बढ़ गया है। इससे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया सकता है। ज़राए के मुताबिक खान सर मकाम का वाज़ेह मकाम नहीं है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार सकती है। फैज़ल खान उर्फ खान सर कब गिरफ्तार होंगे, इस सवाल के जवाब में SSP ने कहा कि तफ्तीश के दौरान सामने आने वाले शवाहिद की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अमन व अमान की खिलाफ वर्जी या जुर्म में जो भी कसूरवार पाया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार हैं उसको FSL में अभी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका अवगत कराया जाएगा। FIR रजिस्टर्ड हो गया है, क्या गिरफ्तारी होनी है? मैंने बताया कि FIR होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए उनको पहचान करके उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके FSL जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोगों को उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध हुआ है, गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो FIR भेजा गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जिस तरह का लोग को एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध में जिसके ऊपर भी होगी उन सब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। FIR में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ हम देख लेंगे। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी इस पर कार्रवाई होगी। खान सर पे FIR हुई है। ये जो घटना हुई है पटना में, ये सरकार को बदनाम करने के नियत से घटना की गई है और इसको लेकर के हमारी जो पुलिस है वो ताबड़तोड़ अनुसंधान भी कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए हमारे विभाग में कोचिंग नीति को हम बना करके बिहार राज्य कोचिंग नियमावली और उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे ये सब लोग उस कानून के दायरे में आएंगे और ऐसी नौबत फिर भविष्य में ना आए। पटना पुलिस अब एक्शन भी पूरी तरह ले रही है। पूरी तरह से FIR हो चुका है। पूरी तरह पुलिस को खुली छूट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बिहार पुलिस को छूट दे रखी है। जो भी कानून के साथ खेलेगा उसके साथ कानून सख्ती से पेश आएगा। दूसरी जानिब खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर तलबा की बड़ी तादाद जमा हो गई है, जबकि हालात कशीदा बताए जाते हैं। खान सर के हामी और मुखालिफिन के मबाइन झड़पों की भी खबरें बताई जा रही हैं। कशीदा हालात के पेश नज़र पुलिस के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि तलबा को अपने अपने घर लौट जाने का मशवरा भी दिया जा रहा है।
उधर खानसर के कोचिंग सेंटर के करीब पुलिस तैनात कर दी गई है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तलबा को निकाल लिया गया है। ज्ञान बिंदु कोचिंग भी इसी कैंपस में वाक़ है। शाम के अवाइल में दोनों कोचिंग सेंटरों के तलबा आपस में लड़ पड़े। पुलिस ने ये कदम मज़ीद वाक़यात को रोकने के लिए उठाया है। अहमदाबाद में एएमसी की जानिब से अचानक इंहदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि वो 20 साल से पहले यहाँ रह रहे हैं और आज अचानक बुलडोज़र और भारी पुलिस के साथ हुक्काम यहाँ पहुँचते हैं और 20 मिनट के अंदर घर खाली करने का हुक्म जारी करते हैं। यहाँ रहने वाले गरीब लोगों ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत मुसलसल लोगों को बेघर करने का काम कर रही है। 20 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। हमने पढ़ाई वढ़ाई अभी हमारी चालू है। हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम किस हिसाब से रहे? गवर्नमेंट बोल रही है, अभी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आकर बोल रहा है कि भाई 30 मिनट में खाली कर दो। हम किस हिसाब से खाली करेंगे? ये थोड़ी ना होता है। सरकार ऐसी थोड़ी ना होती है। हमने ही सरकार को लाया और सरकार हमारा घर तोड़ रही है। गवर्नमेंट इतने भाड़े भी कितने महंगे महंगे, हम रेंट पे कैसे रहेंगे? 20-30 हजार रहेंगे रेंट भी, किस हिसाब से रहे? हमारे घर आप देखो, आवास योजना में हम थोड़ी ना रह पाएंगे। हमको कुछ भी होगा उसकी जवाबदारी सरकार की। मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को मार दूंगी, आदमी को मार दूंगी, पर घर नहीं तोड़ने दूंगी। आधे घंटे के टाइम दिया है, बोले कि नहीं तो कार्यवाही होगी, ऐसा बोला जा रहा है। हमारा कायदे सर है, 50 बार से जो भी ज्यादा है हमारा मकान, उसको तुम मापनी करके दो, हम हमारे हाथ से तोड़ेंगे। तुम्हारा एक भी बुलडोजर हमारे घर पे पड़ेगा, पूरा घर हमारा गिर जाएगा। हमको रोड पे रहने का है, फिर बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। और पहली बात भाई, अभी बरसात चालू हो गई, सरकार का नियम है कि किसी का भी मकान क्या लीगली भी कार्रवाई हो रहा तो भी बरसात में नहीं होती है, तो ये हमारा घर तोड़ने कैसे आ गए? यहाँ पे मोटेरा कोटेश्वर गांव में एक डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, जिसमें एएमसी को जो प्लॉट्स की फाड़नी हुई है, जहाँ पे वो गैर कायदेसर अवैध बांधकाम है, उनमें से कुछ बांधकाम को गिराया जाने वाला है। और उसमें अभी भी कुछ जो काफ़ी लोग खाली करके चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी रह रहे हैं, उनको अभी अनाउंसमेंट करके उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, तो आप भी यहाँ पे खाली कर दीजिए जो आपका मकान है। और अगर खाली करने में उनको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे एएमसी के ट्रक्स, एएमसी के मजदूर सभी मौजूद हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है। बीसीसीआई ने आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज़ के साथ ही एशियन गेम्स के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। श्रेयस अय्यर को T20 का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है, वहीं सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह नहीं मिल सकी है। इसके अलावा तिलक वर्मा नायब कप्तान बनाए गए हैं। 15 साल विभव सूर्यवंशी को पहली बार कौमी टीम में जगह मिली है। उन्हें तीनों स्क्वाड में शामिल किया गया है। इत्तला के मुताबिक आयरलैंड के खिलाफ हिंदुस्तानी स्क्वाड में श्रेयस अय्यर कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, बरशत राना, अर्शद सिंह, प्रिंस यादव, विभव सूर्यवंशी को भी इस टीम में शामिल किया गया है। उधर हिंदुस्तानी शतरंज के नौजवान खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर आर्पर ग्रांधा ने तारीख रकम करते हुए मशहूर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट कैमर को शिकस्त देकर यह कारनामा अंजाम दिया और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए। 20 साल प्रज्ञानंदा ने आखिरी दिन बेहद दबाव में खेलते हुए क्लासिकल जीत दर्ज करी है, जिसके उन्हें पूरे 3 पॉइंट्स मिले हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने कुल 18 पॉइंट्स के साथ पहला मकाम हासिल करके खिताब अपने नाम कर लिया। दिन की शुरुआत में वो 15 पॉइंट्स के साथ 3 नंबर पर रहे, लेकिन आखिरी राउंड में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को शतरंज में हिंदुस्तान के मायनाज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को उनकी तरीन बैनुल-अक़वामी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और इस कामयाबी को एक शानदार संग मील करार दिया, जो आलमी सतह पर नौजवान ग्रैंड मास्टर की मुसलसल उम्दा कारकर्दगी को उजागर करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने प्रज्ञानंद की कामयाबी की सताइश की और खिलाड़ी की मुस्तक़बिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक सिंध तास मुआहदा बहाल नहीं होगा, हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान को दिया इंतबाह।
CBSE में बेज़ाब्तगियाँ, धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का सबूत। कांग्रेस ने फौरी निकाल बाहर करने का किया मुतालबा। काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जवानों का जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर जबरदस्त कशीदगी। खान सर की किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन। तलाशी मुहिम तेज। एशियन गेम्स के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान। शरीयस एयर T20 के नए कप्तान मुकर्रर। सूर्य कुमार यादव जगह नहीं बना पाए, तिलक वर्मा बने वाइस कैप्टन। और प्रज्ञानंद की शतरंज के आलमी मुकाबलों में तारीख साज कामयाबी। नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता। वज़ीर-ए-आज़म ने दी मुबारकबाद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।